بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیبیا کا حاجی، یہ کہانی آپ ساری سن چکے ہیں۔ میں جن ویلاگرز کو، یوٹیوبرز کو، اینکر پرسن کو یا صحافی جو بھی ہیں ان کو سنتا ہوں، انہوں نے 2 3 4 نے ضرور اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ ہم اس کو بڑے اچنبھے کی بات لے رہے ہیں، تو پھر میں اس پر کیوں بات کرنا چاہتا ہوں؟ میں ذرا مختلف بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پسند نہیں آئے گی، مجھے یہ بھی پتا ہے، لیکن میں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ یہی میرا جہاد ہے، اسے ہی میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ یہ کہانی اچنبھے کی کیوں بنی، کہانی کیوں بنی، خبر کیوں بنی، کیوں ذکر کیا سب نے؟ یہ ہمارے غلط عقائد کی وجہ سے یہ خبر بنی۔ غلط عقائد کیا؟ خاص کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدے کی بنا پر یہ بات ساری چلی۔ سب کو پتہ ہے، میں کیا دہرانا، وہ حاجی ہے عامر قذافی اس کا نام، تو لیبیا کا رہنے والا، حج پہ جانا چاہتا تھا، چلا گیا۔ مجھے کوئی پرخاش نہیں اس سے، کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی مجھے کیا ہونی، کیوں ہونی، لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، ممکن بتا سکوں، آپ کو سمجھا سکوں، کہہ سکوں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، بات کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ اپنی بات بتا ہی نہیں سکتا، میجر بات میں نے بتا دی۔ یہ خبر کیوں بنی؟ ہمارے غلط عقائد کی وجہ سے۔ اس کا نام تھا عامر قذافی، لیبیا کا رہنے والا تھا۔ ظاہر ہے آپ کو معمر قذافی پہلے جو لیبیا کا سربراہ تھا، اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، نئی رجیم آ گئی جس طرح پاکستان میں آئی، تو وہاں انہوں نے اپنے سسٹم میں سارا جب فیڈ کر دیا، کوئی یہ قذافی نام کا بندہ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جائے یا کمپیوٹر اس کو روک دے کر دے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا۔ عامر قذافی اس کا جب نام آیا جانے کے لیے، تو وہ کمپیوٹر نے اس کو مینشن کر دیا اور وہ روک دیا گیا، حج پر جانے سے روک دیا گیا۔ اس کی تصویر بھی آ رہی ہے کہ جیسے 1.5 عمر کا ذرا بندہ ہے، داڑھی تو بہرحال مجھے نہیں نظر آئی، خیر یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے۔ وہ رک گیا، ظاہر ہے وہ پریشان ہوا، اس نے کہا میں نے نہیں جانا ادھر سے، بس۔ خیر جہاز گیا، چلا گیا، اڑ گیا، اس میں کوئی فنی خرابی پیدا ہوئی، وہ واپس آ گیا۔ کہتے ہیں 3 دفعہ ایسا ہوا، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ دوبارہ پھر وہ آیا جہاز، پھر جو کپتان تھا جہاز کا، اس نے کہا کہ میں اس بندے کو بغیر نہیں جہاز اڑاؤں گا۔ اب کیا ہوا؟ میں سمجھ اس بندے کا بھی ایسا ہی عقیدہ جیسے ہمارا عقیدہ ہے، ویسا ہی اس کا عقیدہ تھا۔ کہ کیا عقیدہ کی، اب آگے بات سوچنے والی ہے کہ وہ اتنا اللہ کا مقرب بندہ تھا، اس لیے اس کپتان نے کہا، یا پھر اگر مقرب بندہ تھا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے جہاز خراب کر دیا۔ ایک دفعہ خراب ہوا، پھر وہ آ گیا، پھر نہیں لے کر گیا، 2 دفعہ خراب کیا اللہ نے، نہیں 3ری دفعہ کیا تو وہ اس کے دل میں ڈال دیا اللہ نے کہ یہ اس کو لے کر جانا ہے۔ کیا کہانی بنتی ہے؟ یہی بنتی ہے۔ اور اس سے اور تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو یہ بنتی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، جو کچھ اوپر لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں بڑے بڑے یہ جتنے میں آپ کو بتائے ہیں یوٹیوبر یا اینکر پرسن، ان کو میں شوق سے سنتا ہوں، تو وہ اس طرح کے بات بیان کرتے ہیں، پاک بھارت جنگ کے بارے میں بھی، یا عمران خان کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں کب رہائی ہوگی، تو اللہ کو جب منظور ہوا پھر اپنے تبصرے بھی شروع ہو جاتے ہیں، یہ معاملات ہیں۔ پھر تمہارے معاملات پھر کیا ہوئے؟
फिर अल्लाह को जब मंजूर, अल्लाह की मंजूरी से फिर वो अंदर है, जब अल्लाह की मंजूरी से वो अंदर है फिर रहाई के लिए कोशिश क्यों करनी, अल्लाह को ये मंजूर है। कुतुर सवालात उठते हैं। एक और साहब, वो आजकल उनके पर बड़ा वजदान का सवार हुआ है भूत। वजदान होता है, वजदान भी एक चीज सी अहले तसव्वुफ के यहाँ तो मेरा ख्याल ये ज्यादा टर्म इस्तेमाल होती है, बाकियों के यहाँ शायद कम। वो मेरा, जिसे हम आमतौर पर दूसरे लोग छठी जिस कहते हैं, अपनी बसीरत होती है। ज़ाहिर एक बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, नॉलेज है उसका, तो दूसरे की निस्बत उसकी बसीरत ज़्यादा तेज होनी चाहिए, होती भी है। तो उस बंदा वो उस चीज़ को अब इससे लिंक कर रहा है और वजूहत बताता है इस चीज़ की। कई लोग कोई वाक़या देखते हैं, उसको बहुत पहले समझ जाते हैं उस चीज़ से। हाँ जी, तो वो अपने आप को जो कहता है, को समझता है, खासकर पाक बार जंग के हवाले से, तो वो समझता है कि ये गॉड गिफ्टेड है, मुझे ये चीज़ मिली हुई, कि मुझे ये चीज़ें नजर आती हैं कि ये ऐसा होगा, आइंदा भी जंग होगी, ये पहले बताया था होगी और होगी, उसने कहा ये। इस पर मुझे उसका एक खास जुमला जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो कहता कि ये मतलब सब कुछ जो ऊपर लिखा है उसके मुताबिक हो रहा है, जंग भी उसी के मुताबिक है, आइंदा भी वो लिखी हुई है, होगी। खासकर उसने बाजवा के हवाले से बात की, कमर जुवैद बाजवा की, कि ये जो बीज बो कर गया, उसने तो बीज ही कहा, मैं ये कहूँगा गंदा बीज जो बो कर गया, वो जिससे ये सारे हालात अब खराब तर होते जा रहे हैं, उसी का ही तसलसल है ना ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। तो अल्लाह ने कर दिया ये सारा कुछ, तो वो अल्लाह ही करता है सारा कुछ, मफहूम है उस बात का, बिल्कुल इसी तरह है, अल्लाह ही करता है। तो अब बाजवा को चाहिए कि वो मरने से पहले अजहार नदामत कर जाए। जब अल्लाह सारा कुछ करता है फिर बाजवा अजहार नदामत क्यों करे? हैं, ये क्या बात हुई? तजाद नहीं नजर आता आपको? खैर, ये ज़िम्नन मैं बात समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूं। अब क्या उसमें खबर हुई फिर लीबिया के हाजी के बारे में? अल्लाह का बड़ा मुकर्रब बंदा, अच्छा, अल्लाह उसको हज पर भेजना चाहता था तो फिर क्या हुआ? फिर वो उसको इस तरह अल्लाह ने किया। मासल अस्तगफिरुल्लाह, मैं यही कहूंगा कि ये इस तरह का ड्रामा किया गया। जब सब कुछ अल्लाह ही करता है तो फिर ड्रामा भी ये अल्लाह ने किया। अच्छा, अगर अल्लाह ने उसको इस तरह भेजना ही था तो वो कंप्यूटर से ही उसका नाम क्यों मिस हो गया, या जो सिस्टम था उसको जरा हिला देता अल्लाह ताला, उसका नाम निकल जाता, बस बात ही खत्म हो जाती। उसका आमिर कजाफी, उसका नाम निकल जाता, कंप्यूटर मेंशन ही ना करता, तो बात खत्म हो जाती, वो हज पे चला जाता। फिर ये अल्लाह ने ऐसा सब कुछ क्यों किया? कंप्यूटर से गुजरने दिया, आगे जहाज खराब कर दिया, फिर इतना 2-3 दफा जहाज खराब किया, फिर कप्तान के लिए क्या ज़ाहिर करना चाहता था अल्लाह? अपनी कुदरत क्या दिखाना चाहता था? कि किसी के साथ ज्यादती ना करो, किसी के साथ जुल्म ना करो, नजायज किसी को तंग ना करो। तो ये तो वो बात को कुरान पाक में है, इस्लाम हमारा कहता है, इस तरह के काम करके उसने बताना है अब हमें कि ऐसे काम ना करो। ऐसा अगर लोगों को तंग ना करो, तंग करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो कितनी दुनिया है तंग कर रही। ये हाजियों की मिसालें ले लें, किस तरह जलील होते हैं, सामान उनका कहीं रह जाता है, जद्दे में ही होता है, वो जहाज पाकिस्तान में आ जाता है, जहाज ने लाहौर में आना होता है वो इस्लामाबाद उतर जाता है, लैंड कर जाता है। कोई इस तरह कितने वाक़यात हुए हाजियों को, हाजी जाते हुए नहीं, अभी तो सारे गुनाह वो साथ ही होते हैं ना जब जाते हैं। तो हम कहते हैं जब हज करके आते हैं तो फिर वो ऐसा हो जाता है जैसे पैदा हुआ बच्चा होता है, कोई गुनाह नहीं। वो कहते हैं ना, हज की फजीलत में ये बात बयान करते हैं। तो जब वो वापस आते हैं, कितने वाक़यात हैं आपके पास साथ जो मैंने अर्ज किए हैं कि जहाज ने कहीं उतरना
होता है, उनकी टिकट होती है, अतार कहीं और देते हैं। पूरे का पूरा जहाजी, सारे के सारे हाजी जो इतने मासूम होते हैं, बेगुनाह हो जाते हैं एक तरह से, जिसे जैसा कि हम कहते हैं। फिर क्या हुआ लीबिया के कजाफी को उसके हाजी के साथ, क्यों खबर बनाई गई? हाँ जी, फिर यही मैं बात सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, हमें अपने अकायद को देखना चाहिए। हमारे अकायद ही हमारे ज़वाल का सबब है। कि मैं एक वीडियो अपने कर चुका हूं कि हमारे अकायद हमारे ज़वाल का सबब है। मैं और भी अर्ज करता आ रहा हूं कि इस्लाम ही क्यों सच्चा दीन है। उसके तसव्वुरात, मुख्तलिफ तसव्वुर, अल्लाह के बारे में तसव्वुर, अल्लाह का बंदे के बारे में तसव्वुर, कायनात के बारे में बंदे का तसव्वुर, ये चीज़ें उसके तसव्वुर हयात पर असरअंदाज होती हैं। तसव्वुर हयात वो एक बनाता है कि ज़िंदगी का आखिर मकसद क्या है, इसका क्या तसव्वुर है, ये उसके अकायद बनाते हैं, उसके मुताबिक वो चलता है, उसकी सरगर्मियों पर ये असरअंदाज होते हैं। अब मेरे भाइयों, मैं अर्ज करता आ रहा हूं, लेकिन कौन सुनता है? नहीं सुनता। ना सुने कोई बात नहीं, मैं ज़ाहिर है दिल बंदा कुछ दिल गिरफ्तार होता है जब उसकी बात ना सुनी जाए, ना मानी जाए, या उसको कोई मुदल्लल जवाब ही ना दिया जाए। मैं अर्ज करता हूं कि अल्लाह ताला बंदे के मामलात में मुदाखलत करता ही नहीं है, किसी बंदे के भी, और लीबिया के वो हाजी के मामले में भी अल्लाह ने कोई मुदाखलत नहीं करता। अच्छा, उसके साथ जो कुछ हुआ, फिर क्या हुआ? मैं क्या कहता हूं उसको, ये इत्फाकात है। कुदरत के कारखाने में ऐसे बेशुमार इत्फाकात है, ऐसे हो जाते हैं। वो कोई अल्लाह की तरफ से नहीं होते, अल्लाह नहीं कर रहा होता। जो उसने पहले दिन से कसूर बनाए उन्हीं के तहत ही होता है वो सारा कुछ। ऐन मुमकिन है कि ऐसा वाकया या वाकयात हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ, इनके साथ भी पेश आए हो, वो भी अपनी ज़ियारत पर कहीं जा रहे हों, कोई वाकया इस तरह का मिलता जुलता ऐसा हो गया हो, तो फिर क्या है? एक तो बात तय है ना, तो जाते हैं अपने मंदिरों में, गिरजों में, अपनी इबादत गाहों में, सारे ये लोग क्यों जाते हैं? उनकी मुरादें वहां पूरी होती है, उनको तस्कीन मिलती है, उनके दिल मुतमईन होते हैं। हम क्यों कब पढ़ते हैं नमाज? दिल में इत्मीनान के लिए ही पढ़ते हैं ना, या अल्लाह को राजी करने के लिए? वो भी राजी करने के लिए होते हैं, वो भी मशक्कतें करते हैं, दूर दूर उनकी ज़ियारत हैं, वो जाते हैं, करते हैं। फिर इस्लाम ही क्यों सच्चा दीन, इस पर मेरी बात हो रही है, चल रही है, तो मैं उसका जिक्र इसलिए किया कि ये अकायद हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। हमने भी ऐसा बना लिया कि अल्लाह ही करता है सारा कुछ, खुले हम कहते हैं। ये तमाम जितने मुझे ये पसंद है यूट्यूबर, सुनता हूँ मैं इनको कि ये ज़रा आज़ादी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इमरान खान की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। मुझे इस लिहाज से ये पसंद है, इसलिए मैं उनको सुनता हूँ। मगर अकायद के लिहाज से मुझे एक भी बंदा ठीक नहीं नजर आया, एक भी बंदा। और पढ़े लिखे, कोई छोटा मोटा आम नहीं मैं बात कर रहा, इंतहाई पढ़े लिखे थेंटिक किस्म का। अवाम कहती है कि हाँ यार ये बंदा बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बड़ा जहां दीदा है, और बड़ा क्रिएटिव माइंड रखता है, बड़ी चीजें इसने, ऐसे बंदे के बारे में मैं कहता हूँ नाम क्या लेना, ले भी लूंगा तो कोई नहीं, मेरा कौन सा इतना मेरी रीच है कि मैं, बहरहाल मैं इस बात का बस मुझे अफसोस होता है कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला बंदे के मामलात में या बंदों के मामलात में बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं करता। इसकी दलील मैं देता हूँ। मैं कहता हूँ ईमान बिल आखिरत इसकी दलील है। वो कैसे कि आखिरत, हम कहते हैं कि मरने के बाद हमने अपने अमाल का हिसाब किताब देना है। अब जिसने हिसाब किताब लेना है वो ही इधर हमारे अमाल करवाता जाए हमसे। अगर उसने ही उसको हज करवा दिया तो फिर
उसी से पूछा शाबाश तूने बहुत अच्छा काम किया, लिहाजा तेरे गुनाह माफ और तू जन्नत में जा। ये क्या बात हुई? ये तो मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि उसी का टॉपिक चल रहा है। और भी अगर सबको वो अच्छे काम करवा रहा है और जिनसे अच्छे काम नहीं करवा रहा, चले जी तुमने अच्छे काम नहीं किए तुम जहन्नम में जाओ। क्यों भाई? उनसे उनको क्यों नहीं अच्छे काम करवाए? काम करवाने वाले पर सवाल उठता है या नहीं उठता? जिनसे अच्छे काम करवाए जन्नत में भेज दिया, जिनसे बुरे काम करवाए या उन्होंने बुरे काम किए, चले ये कह लें उन्होंने खुद बुरे काम किए उनको जहन्नम में भेज दिया, उन्हें अच्छे काम की तौफीक क्यों नहीं दी? तौफीक देने वाले पर सवाल उठता है या नहीं उठता? क्या ये इंसाफ है? फिर मुनसिफ है? जहां इंसाफ नहीं वहां जुल्म है। क्या माज़अल्लाह अल्लाह जालिम है? जगह जगह पर कुरान पाक में है कि अल्लाह किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। है हमारा ईमान, ईमान होना चाहिए, वो किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता, बिल्कुल हमारा ईमान है। तो फिर इंसाफ नहीं करता है, हमारा इंसाफ करता है, फिर क्या बात बने? खुद ही काम करवाए, खुद ही दो रास्ते दिखा दिए, खुद ही किसी को एक रास्ते पर चला दिए, किसी को दूसरे रास्ते पर चला दिया, और आगे कहा कि जिन्होंने गलत काम किया उनको मैं दोज़ख में भी भेजूंगा। क्या था अल्लाह के बारे में तसव्वुर कैम होता है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि वो जो मामला है वो इत्तफाकात हैं, ऐसे इत्तफाकात कायनात में कुदरत के कारखाने में होते रहते हैं, और भी बहुत सारे कई दफा ऐसे। उसमें ये नहीं होता कि अल्लाह कुछ करता है, अल्लाह नहीं करता, मुदाखलत करता ही नहीं। फिर एक और बात, हम कहते हैं अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह उस अब उस हाजी के दिल से निकली बात, ज़ाहिर जब उसको रोका गया, इमरान रियाज खान साहब हमारे, जो जिनको मैं शौक से सुनता हूँ, बड़ी फॉलोइंग है उनकी, बिल्कुल उनकी बात बड़ा इम्पैक्ट रखती है। फिर उस बेचारे ने जिंदगी बचाकर जिस तरह वो गया सब लोग जानते हैं, वो खुद भी बयान करता है, अपनी जान बचाकर वो चला गया, लोग ताने भी देते हैं उसको। उसको भी नहीं जाने दिया गया था एहराम, उसका भी खुलवा दिया। दिल से बात निकलती, ये इसके दिल से तो इतनी ना निकली कि ये जा सके, इसको तो रोक लिया गया। उसके दिल से निकली तो वो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह तो बेनियाज है। उसको अगर इस तरह दिल से निकली हुई बातें इसे हम कहेंगे दिल से निकली और अल्लाह ने सुन ली, वो सुनने वाला भी बड़ा अजीब है एक तरह से, कुछ सुन लेता है कुछ नहीं सुनता। ये क्या बात है? वही आप देखें, ये बर्मा के मुसलमान कश्तियां भर भर के जा रही हैं और वो डूब रही हैं, क्या उनके दिल से नहीं आवाज निकल रही थी? उनको आरे से काटा जा रहा था, गर्दन लिटाए हुए हैं जमीन पर, और उनके आरे से, इलेक्ट्रिक आरे से उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, दिल से नहीं। अब गजा देख ले, सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने, बम बरसा रहा है, आग बरसा रहा है इसराइल, उनके चीथड़े उड़ रहे हैं, क्या उनके दिलों से आवाज नहीं निकल रही? दिलों से दुआएं नहीं निकल रही? क्या है वो नहीं सुनी जा रही? फिलहाल तो नहीं सुनी जा रही। यही लगता है कि अल्लाह ताला वो नहीं सुन रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो हाजी की लीबिया का हाजी अगर नहीं जा तो वहां अल्लाह ने सुन ली। ये क्या बात हुई है? इंसाफ है ये इससे और गंदा गलत कीदा हमारा अल्लाह के बारे में। उसका कोई कानून और कायदा नहीं, कोई असूल नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं। यही निकलता है ना कि कोई कानून नहीं उसका, कोई ज़ाब्ता नहीं। जिस तरह दुनिया के बादशाह, ज्यादा से ज्यादा हमने क्या मर्तबा दे दिया फिर अल्लाह को? अर्श से तार के दुनिया के बादशाहों के बराबर खड़ा कर दिया। जिस तरह दुनिया के बादशाह खुश हो जाए कि खिलत दे दे, नाराज हो जाए सलाम करने पर भी तो गर्दन उतार दे, या फांसी दे दो उसको। बादशाह ऐसे करते हैं और अल्लाह भी बादशाह है, वो भी ऐसा ही करता है। क्या तस्वर कायम करते हैं? देख ले खुद। मैं यही चीज आपके सामने रखना चाहता था बस। ये लीबिया का हाजी, और हमने क्या क्या बनाया, और सिर्फ बनाया अपने गलत अकायद की वजह से। अगर मेरे भाइयों कीदा ही गलत होगा, ईमान ही गलत हो गया, और अल्लाह के बारे में आगे क्या बनेगा? ईमान ही ना रहा तो अमाल का क्या बनेगा? काश हम सोचें, सोचना चाहिए और फिक्र करना चाहिए। बस इसी की दावत है मेरे भाइयों। बस इतनी बात मैं करना चाहता था, बात काफ़ी लंबी होगी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अल्लाह के बारे में, अल्लाह के वास्ते जी इस पर ज़रूर गौर करें। अल्लाह का तस्वर हमारा ठीक
نہیں ہے۔ قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت ہی ضروری ہے، فرض عین ہے۔ یہی اگر بنیاد نہ ٹھیک ہوئی آگے عمارت کیا بننی ہے، وہ کیسی بننی ہے؟ ایک ہی جھٹکے میں جاتی پانی کا بلبلا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو بس میرے بھائیو جی، میں عرض کرنا چاہتا، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔